Hello and welcome back to my channel Inspire with Anushka. Guys, how are you? Hope you all are fine. Guys, actually today we are going to discuss about the crop protection and its management. In the previous videos we have studied about the crop production and its management, and today we have to discuss about the crop protection, that how could we protect our crop from being destroyed or from being failured or from being damaged. So guys, today's session is going to be very important for you all if you are interested to know about, and if you have the importance work just to know about the crop protection and its management. So to discuss all these things, we have to know firstly about that what are crops and why we need to protect the crops. So guys, crops are the grains or the substance or the cereals that we regularly or consistently grow in our agricultural field or our farmyard just to fulfill the demands of the population of a country or the population of the world. सो क्रॉप्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि वो हम जिन पे फीड करते हैं उन्हें कल्टीवेट किया जाता है किस चीज़ के थ्रू, तो क्रॉप्स के थ्रू। जो क्रॉप्स हम एग्रीकल्चरल फार्म यार्ड्स में ग्रो करते हैं वही क्रॉप से हम लोग सेरल्स मतलब किसी भी तरह से उसे हम रीप्रोसेस करके और प्रोसेसिंग करने के बाद उसे एज अ फूड हम लोग यूज़ करते हैं। सो गाइज़, ये है क्रॉप। और फिर हमें क्रॉप का प्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? प्रोडक्शन ज़रूरी है क्योंकि इतने बड़े पॉपुलेशन को हमें फीड करना है। तो इतने बड़े पॉपुलेशन को फीड करना है और हमारे पास लैंड की जो लैंड जो हमारे पास अवेलेबल है वो बहुत लिमिटेड है। सो बीइंग soil also are limited and we have the limited lands for the farming purpose, and the day by day these lands are being reduced because the population is increasing. We need the more infrastructure, so we have to be grow something that could fulfill the requirements of whole this large population of the world from that simple and short land. So guys, we must have to practice, or we must have to do something just to enhance the productivity and the high yielding capacity of food grains or seeds must be used just to grow. So if we are growing all these things, if we are using all these methods and technology and scientific activities just to enhance the crop production, then beside all these things we also must have to protect our crops from any of the damages that can be occurred due to the loss of the nutritional value from the soil, loss of the nutritional value from the environment, or maybe the insects or pests that will harm it, or maybe any disease that can harm or that can affect the productivity of the crops. So these are the studies combinedly in a single topic, that is the crop protection management. कि हम क्रॉप को प्रोटेक्ट करने का, बचाने के लिए कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनका हम यूज़ करके अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं किन चीज़ों से, वो सारी चीज़ों से जो हमारे क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर जो हमारी क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट डूइंग एनी डिले. एक्चुअली fields, crops have to be protected just because of the three things. Do you all know what are that three important things for which the crops have to be protected? The first one is the weeds, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, द अनडिज़ायरेबल प्लांट्स, जो कि हमारे क्रॉप फील्ड्स में हमारे ग्रेन जिनका हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो हमारा मेन क्रॉप है, उसके साथ अल्टरनेटिवली खुद ब खुद ग्रो होते हैं विदाउट स्प्रेडिंग द सीड्स, विदाउट यूजिंग द सीड्स. जो अनवांटेड प्लांट्स खेतों में हमारे मेन क्रॉप्स के साथ ग्रो अप होते हैं, दैट आर कॉल्ड व्हाट्स बीड्स. एंड बीड्स टेक्स ऑल द न्यूट्रिशन ऑफ द प्लांट, एंड आफ्टर टेकिंग, इसमें हमेशा क्या होता है, कंपटीशन बना होता है हमारे मेन क्रॉप में और वीड्स में कि न्यूट्रिशनल वैल्यू जो सॉइल के पास है उसे, जो क्रॉप्स को ग्रीन क्रॉप हमारा जो मेन क्रॉप है उसे लेना चाहिए था, उसी न्यूट्रिशन को, उसी मिनरल को क्या कर रहे हैं, वीड्स भी ले रहे हैं. तो ये एक तरह के बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं, और जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होना चाहिए था हमारे क्रॉप्स में उसको कहीं ना कहीं अपने आप में कंट्रीब्यूट करके या फिर अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट करके उसमें कमी ला रहे हैं. सो गाइस, वीड्स जो है जिनके कारण कि हमें क्रॉप के प्रोडक्शन को और उसके मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए. सेकेंड वन इज़ दैट यू नो व्हाट, द इंसेक्ट्स. येस, द इंसेक्ट्स एंड पेस्ट विच आर वी प्रेजेंट इन आवर क्रॉप फील्ड्स, और it cannot be, we are not rearing that, but with the present of the environment and the available source of the food for themselves, they themselves create them, just come to have feed on the plants, on the grains which we are growing in the agricultural field. So these insects and pest also creates the damage to the plants. That's why we must have to protect it from the insects and pest. Okay guys, and the third and most important is the disease causing organism like the fungi. फंगी जैसे बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमारे प्लांट्स को हार्म
पहुंचा सकते हैं या फिर हार्मफुल है हमारे प्लांट्स के लिए, तो ऐसे प्लांट्स, ऐसे फंगी से, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बचना है और हमारे क्रॉप्स को भी बचाना है। और इसके लिए हमें क्या करना है, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट की बहुत ही डिटेल में हमें पढ़ना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इन तीनों प्रोसेसेस को, यानी कि वीड्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वीड से अपने क्रॉप्स को, दूसरा है कि हम इंसेक्ट्स और पेस्ट से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने प्लांट्स को, एंड द थर्ड वन इज़ द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम कैसे अपने फील्ड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स, ये तीनों जो मेन टॉपिक्स हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थ्री इन द मोस्ट ब्रीफली बाय अ सिंगल वीडियो। किसी एक सिंगल वीडियो में मैं एक एक करके एक वीडियो बनाऊंगी पहले बीड्स के लिए, सेकंड बनाऊंगी इंसेक्ट्स एंड पेस्ट के लिए, एंड डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनसे हमें क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है। तो इन तीनों का वीडियो अवेलेबल हो जाएगा मेरे चैनल पर नेक्स्ट कमिंग अपडेट टाइम में। और जस्ट क्योंकि 9th का सिलेबस खत्म ही होने वाला है, तो आई थिंक बहुत जल्दी आ जाएगा वो, आई थिंक आफ्टर 2 days, बिकॉज टुडे वी हैव टू discuss all these things, and from tomorrow this all topic will be available for you or on my channel. So guys, इन तीनों चीज़ से हमें बचना है और इन तीनों चीज़ को हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे, कैसे ये प्रोटेक्ट, क्यों हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से ये क्रॉप्स को हार्म पहुंचाते हैं, और इनके होने से हमारे क्रॉप्स को क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। इन सारी टॉपिक्स को वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड ब्रीफ इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ गाइज। सो द वीड्स, इंसेक्ट्स एंड द डिजीजेस कॉजेज द 70 to 75% मोस्टली जो क्रॉप्स को डैमेज होता है, उस डैमेज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं वो यही 3 फैक्टर हैं, एक वीड्स और दूसरे इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, एंड द थर्ड वन इज़ द डिजीज़ causing microorganisms. These 3 points are mostly responsible for the damaging of the crops. So we have to protect and we have to manage our farmyards just to keep away from all these 3 things. So guys, in general crops कैन बी इन जनरली, अगर हमें जनरली क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना है तो हम कुछ सिंपल मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे वी कैन यूज़ द पेस्टिसाइड्स, वी कैन यूज़ द इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, और ये सारी चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है ऐसे केमिकल्स जो कि हमें वीड से फ्री कर रख सकते हैं हमारी क्रॉप फील्ड को, जो कि इंसेक्ट से फ्री रख सकते हैं हमारी क्रॉप फील्ड को। सो वी मस्ट हैव टू यूज़ ऑल दिस साइंटिफिक थिंग्स जस्ट इन द वे टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप फील्ड। ओके, द सेकंड वन इज़ द यूज़ ऑफ रेसिस्टेंट वेराइटी। वी मस्ट हैव टू यूज़ द रेसिस्टेंट वेराइटी जो कि डिजीज़ रेसिस्टेंट हो। हमने आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू we have grown up our science and technology so much that we nowadays have the capacity just to grow the type of plant which have that type of characters which we want. सो आवर डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स को हम लोग अभी एक प्लांट में रख सकते हैं। ये हमने जेनेटिकल इंजीनियरिंग के थ्रू बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल एक तरीका है, जिसके कारण कि हम डिजीज़ रेसिस्टेंट और रेसिस्टेंट वैरायटी और हाइब्रिड वैरायटी की सीड्स को प्रोड्यूस कर सकें, जिन्हें अपने क्रॉप फील्ड में लगाएंगे, फार्म यार्ड्स में लगाएंगे और बहुत ही अच्छी प्रोडक्टिविटी पाएंगे। सो गाइज, द थर्ड वन इज़ द क्रॉप रोटेशन एंड द क्रॉपिंग सिस्टम। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न हमने सीखा है, जिनसे कि हम बच सकते हैं क्रॉप के या फिर सॉइल के न्यूट्रिशनल वैल्यू को लॉस होने से, जिसके कारण कि आगे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बनी रहेगी, ताकि हम नेक्स्ट जो भी क्रॉप लगाते हैं उसमें हमें फैसिलिटी मिले कि सारी न्यूट्रिशन और सारी वैल्यूज़ वो जो है सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन्ड है। सो हम क्रॉप रोटेशन को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि हमने देखा कि हम साल भर में ही क्रॉप में बार बार कंसिस्टेंटली एक ही प्लांट को नहीं ग्रो करें और उसे अल्टरनेट करके करें, यानी से मतलब ईयर में हम एक क्रॉप फील्ड से 2 या 3 टाइप के डिफरेंट ग्रेन्स को अगर हम प्रोड्यूस करवा पा रहे हैं, तो दैट इज़ द crop rotation. And what are the mixed cropping? Just to reduce the risk of the crop failure, we use the mixed cropping, in which we just use to mix the seeds before growing, and then after we sow it in the soil, and then the crops grows. And the third one is the intercropping also, in which we consistently give a pattern inside the soil, and one after one the rows of the different crops are grown. So these 3 are the ways just to protect the plants or just to protect the crops. And the fourth and the last one is the summer plowing. If we leave the farmyard in the summer time after plowing, then the sunlight will automatically have the power to kill the microorganism which is present in the soil that may be harmful for the crops. And sun also have the power just to increase the number of that microorganisms which are advantageable or favorable for our crops. So guys, these are the 3 or 4 points by applying which the general crops and the production will be protected. So guys, this is all about the today's topic, because this is the intro for the crop protection management, and in the next upcoming video we are going to discuss about the weeds, we are going to discuss about the insects and pest, and of course also about the disease causing
germs that like the microorganism like fungi which are affecting our crop fields and its productivity at a very high rate. So guys, if you like this session, please press the like button, share it with your friends, and subscribe my channel. Thank you so much. But don't forget to put the comment that if you have any suggestion for me, if you have any topic that what you want in the next, and about any of the idea, any of the suggestion, all these things are welcome. So guys, bye bye and keep watching my channel for the next coming videos. Thank you.